आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। सीबीआई रिया से हर उस सवाल का जवाब तलब कर रही है जो सुशांत की डेथ मिस्ट्री को सुलझा सकती है। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बीच एक ऐसा टेप सामने आया जिससे सुशांत की मौत की पहेली कुछ सुलझ गई, कुछ उलझ गई। एक प्रेम कहानी ट्रेजेडी में बदल गई। एक प्रेमिका को खलनायिका में हमने बदलते हुए देखा। छोटे शहर से आया सुशांत नाम का हीरो जिंदगी को अलग तरह से जीना चाहता था, लेकिन रिया की जिंदगी में आने के साथ ही उसमें अजीब से बदलाव दिखाई देने लगे। रिया का सुशांत पर कंट्रोल दिल से लेकर दिमाग तक था, लेकिन सुशांत अचानक भयानक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए। मुंबई छोड़कर भागने की सोचने लगे, छोटे शहर में बसने की सोचने लगे। इन सवालों के इमोशनल पहलू की पड़ताल जरूरी है। क्या सितम है कि दोनों ही मर जाए। रोमियो जूलियट से लेकर हीर रांझा तक प्रेम कथाओं की ट्रेजेडी यही रही। मिलेनियल्स के महबूब शायर जॉन एलिया ने इसे अपनी जबान में इसी तरह बयान किया। मगर रिया सुशांत की कहानी में सुशांत मर चुका है। मौत ने उसे चुना या उसने मौत को? जांच जारी है, पड़ताल जारी है, सच का बाहर निकलना बाकी है। रिया जिंदा है, उससे पूछताछ जारी है। सच का साजिश की तह से निकलना बाकी के पीछे मोहब्बत है, ये कल्पना भी डराने वाली है। असल में मोहब्बत का गुम होना ही कई बार नायक की मौत बन जाता है। ट्रेजेडी किंग ऐसे ही नहीं बना करते। इस तर्क पर तो मानना पड़ेगा कि 8 जून से ही सुशांत की मौत की पटकथा लिखी जा रही थी। 8 जून को उसकी जिंदगी से मोहब्बत गुम हुई। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है। इस मोहब्बत ने ही सुशांत को 14 जून को काल के गाल में धकेल दिया। इस मौत की जिम्मेदारी तय करनी है। सुशांत की महबूबा रही रिया से पूछताछ जारी है। रिया के घर से लेकर सीबीआई के ठिकाने तक भाग दौड़ जारी है। मगर इस तमाम शोर में सुशांत कहाँ है? आपका हीरो कहाँ है? हमारा हीरो कहाँ है? शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। छोटी जगह से आया एक नौजवान अचानक आया या पैदा किया गया या उसे घेर कर पैदा कराया जा रहा था, इसे समझने At this point in time, I just wanted a request as a favor was that how should we just close save all the money, do it in a way that I can. We talked about a worst case scenario yesterday, and yes. that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up. I just want to know how this trust thing functions. I have no idea. I'm a layman. Right. So you're creating a child. You're giving birth to an entity in which there will be set rules and regulations, and which will be defined that this is how the trust will function. And it's a private trust because it's for the benefit of a certain set of people. Say that Riya and Shruti are the trustees, okay? And then the third party is the beneficiary. Who is the beneficiary of the trust? Say in this case it will be him, right? Now the law demands that trustees can only act in a fiduciary position, means in a position of trust. So they have been put in charge that okay, this is the asset that the settler brought in, you have to just administer this. It's not a transfer of ownership, okay? So the trust doesn't become the trustees don't become the owners, right? They are only like guardians or gatekeepers, or they're watching a certain property, and they have to make sure that they use the assets, whether it's money, whether it's property, in a manner that is always in the highest and best interest of the beneficiary. So a lot of times you'll see that parents actually set it up for their children. Beneficiary, yeah, the settler can be And later on, if you're not happy with the role of the trustees, there is a provision. There's a Trusts Act, and you have lots of legal remedies. I have another question. Now, for example, if we have, say, 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. And you can define all that. It can be a simple or a.
we have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, I mean, like, it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and... But that you let us decide. No, you're deciding all this for yourself. No, let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months, homework of 2.5 months. Tell me, what is the worst fear? Is So the the fear end- that we're going to run out of, we're not going to have any So financial I'll stability? tell you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I'm not there, or Shruti is not there, or Miranda is not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. Right, They right, just yeah. put all his money in FD. So in the card, there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings in the best case possible that you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen. Like to break an FD. But that too, anyway, it won't That will happen. You see, Won't happen. And I that's would already in place. move from city to To a smaller, yeah, you have probably have that place. either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Papna for some time. See that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, Yeah, he and on the wants one to hand, feel if you're having this safeguarded. conversation to be conscious of finances, then let's not add to that also, right? Leave and license. Yeah, then 1 you year. want to burden him with I told her that give it 5-6 months here initially with Pavna, because you have the place. and we're paying rent and it's And not then that you go to Goa and see Compared if you to what want we have for a here. month. Yeah. I was saying that it was too expensive. Which one? The Pavna place, for Pavna standards, it may be expensive, for but Pavna for the standard, it's property, and It's he fine. seems to be enjoying it. And it's made well. There's like a river also close by, right? You A have lake. access to the There's lake. a problem. There's some acres. deals. It's leave and license. See, he's thinking of the future. Like he's worried about the future, and he wants that kind of safeguard Yeah. that I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Yeah, so that, See, right now that he step only should had his be- money open. Yeah. Few FDs have been made now, and Yes. some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed To be earlier. honest, सुशांत सिंह राजपूत मामले को आप महज क्राइम एंगल से मत देखिए। सुशांत को एक असफल प्रेम कथा के टूटे हुए नायक के तौर पर देखिए, जिसका सब कुछ छला गया, सब कुछ छीन लिया गया और बाद में उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया। सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ है, ये तो जांच बताएगी। लेकिन लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली रिया चक्रवर्ती आज अपने बचाव में सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम कर रही हैं। एक प्रेम कहानी का इससे अफसोसनाक दुखद अंत क्या होगा? सीबीआई की पूछताछ में रिया ने खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की, मगर सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मरे हुए इंसान के ऊपर बदनामी के दाग लगाना आसान है, इनका जवाब देने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। रिया ने खुद को बचाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत पर कई ऐसे आरोप मढ़ दिए जिन्हें सुनकर तकलीफ होती है। रिया ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सीबीआई के सामने झूठ से भरी एक थ्योरी तैयार की ताकि सुशांत की मौत की तलवार जो उन पर लटक रही है उससे सभी का ध्यान हटाया जा सके। आइए आपको बताते हैं कि रिया ने खुद को बचाने के लिए सुशांत को किस तरह बदनाम करने की कोशिश की। रिया ने अपने जवाब में सुशांत पर मीटू जैसे संगीन आरोपों का सहारा लिया। रिया के मुताबिक सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की हीरोइन संजना सांघी ने सुशांत पर मीटू के आरोप लगाए थे। मकसद ये दिमाग में डालना है कि सुशांत कहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करते थे, उनका कैरेक्टर खराब तो नहीं था। सुशांत को बदनाम करने के लिए रिया ने यह कहा कि सुशांत ड्रग लेते थे। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सुशांत ड्रग्स लिया करते थे। इतना ही नहीं, ये बात भी फैलाई गई कि सुशांत को चरस और गांजा लेने की आदत थी। मकसद खुद पर लगे ड्रग के आरोपों को सुशांत पर थोपना था। अपने बचाव में रिया ने सुशांत को एक मूडी इंसान बताया जो अपनी मनमर्जी के आगे किसी और की चलने नहीं देता था।
मकसद है कि सुशांत को एक बदमिजाज, तुनक मिजाज इंसान के तौर पर पेश किया जाए जो धीर गंभीर नहीं था। सुसाइड की कहानी को मजबूत बनाने के लिए रिया ने सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात फैलाई। रिया ये कह चुकी हैं कि साल 2013 में सुशांत के साथ एक डिप्रेशन का दौर आया था। उसके बाद से उन्होंने मोडाफिरिन नाम की एक दवाई रखनी शुरू की थी। इसके पीछे रिया का मकसद है सुशांत को दिमागी तौर पर कमजोर और मनोवैज्ञानिक दबाव में रहने वाला शख्स बताना। रिया चक्रवर्ती का सामने आना, मीडिया में इंटरव्यू देने के पीछे की वजह पर किसी को एतराज हो न हो, मगर जिस सुशांत सिंह राजपूत को रिया प्यार से सुश या फिर सुशी कहती थी, उसे अपने बचाव में बदनाम करना किसी को रास नहीं आ रहा। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी भी मानते हैं कि हर किसी को अपना बचाव करने का अधिकार है, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की ही होगी। हर किसी को लगता है कि अपने बचाव में रिया ने अपने प्यार की गरिमा खोई है। एक दिवंगत इंसान को बदनाम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक इंसान जिसके पास हुनर था, जिसके पास ज्ञान था, जिसके पास सपने थे, जिसे तारों के बीच जीना अच्छा लगता था, जिसके पास उड़ान का सपना था, वो आज अपनी ही महबूबा के हाथ रुसवा हो रहा है। रिया चक्रवर्ती ऐसा क्यों कर रही हैं, ये रिया चक्रवर्ती ही बेहतर समझती है। वो मुंबई मेरी जान के जुमले का मतलब बखूबी समझती है, मगर मुंबई सुशांत सिंह राजपूत को रास नहीं आई। वो बार बार मुंबई से भागते रहे, भागी थी। सीबीआई की जांच का फोकस इस वक्त जिन चीजों पर है, पहले उन्हें समझिए। दिशा सालियान की मौत, सुशांत का डिप्रेशन और रिया की विदेश यात्राएं। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से उनकी विदेश यात्राओं से संबंधित तमाम दस्तावेज तलब किए हैं। जिन विदेश यात्राओं पर सुशांत ने लाखों खर्च कर दिए, अब वो रिया के लिए महज एक कर्टसी है, मगर असली कहानी तो ड्रग्स से जुड़ी है। रिया चक्रवर्ती के पास लगातार ड्रग्स पहुंच रहे थे। व्हाट्सएप के जरिए रिया ड्रग सप्लाई चेन से जुड़ी थी। अब यहां सवाल यह है, रिया ड्रग्स की डिमांड किसके लिए करती थी? वो खुद ड्रग ले रही थी या सुशांत को आदत लगा रही थी? रिया सुशांत को बचा रही थी या डिप्रेशन में धकेल रही थी? डिप्रेशन से जुड़ी दवाएं नशे की तरह तो नहीं इस्तेमाल हो रही थी? मारिजुआना की आदत सुशांत को थी तो रिया क्यों मंगवा रही थी? ये वो सवाल हैं जो एक भूल भुलैया का रास्ता खोलते हैं। इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की पहेली तभी सुलझेगी। फिलहाल तो सुशी की बेबू ही सीबीआई के लिए सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है एलओसी से, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।